So Okay. I'll start with the introduction of our guest, and thank you so much for making a time from your busy schedule. Although he has gone transferred from Kolkata center to Mumbai center, and because of that only he was busy. And matter of fact, basically, is only four people earlier there in this food technology domain in QCI. And the last examination that happened was in 2018 Exactly. 19. Correct. So, and after that, this is happening. I mean, it was meant to happen in 2023, but somehow it got postponed to 2024. So, of course, there is a gap of 4 to 5 years or 6 years. All right. Amol Sahare, he is a dairy technologist by profession, in BTech and MTech, also in dairy technology from India, Karnal. And earlier, as I previously told, that he was working in a Calcutta center. There are four centers basically: Chennai, Mumbai, Calcutta, and Delhi. And there are sub centers as well, couple of. And now his post is working as assistant of controller, patent and designs in Mumbai. So, what the journey he had, it is similar kind of what we are going to face currently. And that time also it was a similar, like prelims was there, then mains was there, interview was there. Although seats were very less, of course. So, with Amol sir, we are going to talk about what are the major things. We face it during, it's a similar kind of how UPSC happens. Your PSC examination, so there's a prelims, then mains will be a written format, and after that you'll be having interviews. So it is a gadgeted post. My first question with Amal sir is going to be on this topic only. So please everyone listen this carefully. Section A is each question with 12 marks. Section B 20 marks each question. Section C 28 marks, and section D is 40 marks. Till now, I when I see previously in my graduation also, in my masters also, or whatever the journey that I have till now, I haven't seen any paper, any question with 40 marks. So my question with Amol sir is, how do you think that which pattern we should attempt? Let's say the last question, last section D is each question is of 40 marks, and the first section is 12 marks. If I see the question, so we have already developed the solution for that. First question, that 12 marks question also has a very much to write. I mean, if you're started writing, it won't end. Now, in the last question also is similar. We don't see such a difference, but there's a mark difference of 28 in first section and the last section. So, what is your thought? How did you attempt all the questions in your time? Because this is the similar pattern that you are following, since there is no official notification yet that they are going to change the pattern and sort of. So, please enlighten on that. Actually, just see, the first mistake I made in 2015 while attempting the question is I started from question 1, and when I moved on front, so in the end I seen that there is 40 number questions and we have to write the same matter. Okay, Same item. the content, the words we have to write, or just for example, if I have to write 200 words for 12 marks, I have to write 200 words for 40 marks. Okay, so my thought is if you are having 40 number question at the end, okay, and if there is no guideline to attempt the question serial wise, okay, Correct. if there is no guideline to attempt the question serial wise, then it's always better to start from the big question, that is 40 number questions. Okay, because it will take same time, same amount of energy, and with fresh mind, your answer will be better. Correct. Okay, when there is a shortage of time at the end of a exam, you will find it's very much difficult to attempt the 40 number question. Correct. Correct. Okay, You'll be rushing out of time. yeah, sometime our mind get jam. Okay, Correct. when we are saying numbers, so we are thought we are thought is that our thought is that, so how much word we have to write to get that 40 number, right? So it's always better to start from 40 numbers, then 30 numbers, then 12 numbers. Okay, and another thing is attempt every questions. Okay, try to attempt every question and write something. The my experience with UPSC is that in government exam, when there is a subjective examination there, okay, so most of the time they are not giving 0 marks. Okay,
They are not giving 0 marks. So in any competitive exam, even a single number or even half number is very much important. Okay, Correct. so we do not know by how much number we are going to miss the our final list. Okay, and most of the people are writing the competitive exam either from this year or from last past 2 to 3 years, so they know the value of one number is very much important. So my only suggestion is you have to attempt each and every question. So try to attempt 40 number question first. Okay, because same amount of energy and same amount of time you have to invest to write that 40 number question. Very correct. So surprisingly, if I totally agree with Amol sir first, and surprisingly, if something happens, it will be similar pattern. So any examination, there are plenty of types. Let's say like food engineering question, food microbiology question. Also, I have one more suggestion. So generally, let's say compare that if you want to write oil processing and then you want to just solve a mass energy balance question, and I saw a couple of questions belong to same category of 40 marks, 28 marks, and this 20 marks category. My one more suggestion, I'll also take a consent from Amol sir. What would be right in this case? If we have a numerical and if you have a Okay. theoretical questions, I go have for to, numerical. या I मैं mean, भी अभी वही बोलने वाला था कि अगर कोई न्यूमेरिकल है और आपको लग रहा है कि ये अटेम्प्ट मैं कर सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ, सो न्यूमेरिकल को हमेशा टाइम कम ही लगता है। जहाँ तक आप लिखने की बात आती है, correct, सॉल्व करने की बात correct, आती है, तो न्यूमेरिकल्स में टाइम कम लगता है। सो अगर आप उस इसमें है कि वो क्वेश्चन आपको डाटा देख के सब कुछ देख के लग रहा है कि ये अटेम्प्ट कर पाऊंगा मैं, क्योंकि आप अगर 2015 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें देखिए न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल थे। ठीक है, जस्ट लाइक एक होगा वेट बल ड्राई का वो टेम्परेचर था, और एक correct, आई गेस correct, माई correct. मास मास बैलेंस का समथिंग होता। तो अगर सिंपल, और आपको पता है फूड इंजीनियरिंग में हम कोर इंजीनियरिंग तो नहीं है हमारा। ठीक है, तो फूड इंजीनियरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इफिशियंसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्प्रे ड्रायर का हो गया, पास्चराइजर का हो गया, इवापोरेटर का हो गया, मास बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के ही आएंगे आपको। तो मैंने राजू को भी बोला है कि जैसे गेट के जो पेपर होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, या सी एफ टी आर आई के अगर कोई फूड इंजीनियरिंग का अगर पेपर होता है, ठीक है, इवन इंडिया इफ़ यू गेट पेपर फ्रॉम इंडिया आर आई, ओके, कि न्यूमेरिकल के जो भी अगर क्वेश्चन मिलते हैं, तो देखिए ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एग्जाम में डाटा चेंज हो सकता है। ठीक है, पैटर्न तो सेम ही रहेगा। Correct, थोड़ा correct, बहुत correct, correct. 5-10% का वेरिएशन रहेगा कोई भी न्यूमेरिकल्स में। ऑलमोस्ट 5 की जगह पे 10 रहेगा, 10 की जगह पे 15 रहेगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। इससे अलावा ज़्यादा तो कोई मुझे नहीं लगता कि इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम है ज़्यादा। Correct, correct. एक चीज और भी, secondly I spoke about it was 2018, somehow the paper that lastly happened in 2015, so it's almost 9 years. So that was one thing. No, second thing is, of course, when I'm in constant touch with Amol sir and we are working on the paper. Actually, we have launched also a course for this food technology main. So within we have very less time. I haven't seen any examination never have this much less time for any mains examination, that you are releasing राइट। a result on 10th of January and you're expecting students to attend the, and this is a, you have a big syllabus. You have a two parts as well, part A and part B. Let's say part B is kind of compulsory. Both parts are compulsory, of course, and written, and there is another whole thing is kind of single correct. It's online basically. Now we have already collected couple of papers from all the some good institution, let it be IIT Kharagpur and IIT Rourkela, then NIST. We are analyzing that what was the pattern, how is the questions we can pick or modify, and we can basic need is we have to practice the syllabus, everything. I mean, we if we're aware of what is oil processing, we can write. We know what is the coffee processing, we can write. So question can be modified. Either you write the process of coffee, you write kind of any same concept can be modified in different. So if we have got, and our aim is to provide all the concepts to different questions, and people can attempt that, of course. Now my next question is, generally students in this shorter time, Amol sir, how they should manage. There are being I just talked some of the like what happened in the prelims, the similar syllabus that we have here also we have changed in the IPOs as well. So how to manage that? Either it is going to impact that, or Uh, it is, of course.
Of course, it is parallel for both of them. So the people are in constant competition. Everyone is going with the same phase. So it will be that way. Please enlighten on that. Uh, just see, we are having four subjects, right? Food Correct. chemistry, food microbiology, food technology, food engineering. So we Correct. are not in a position to invest all our energy on one particular subject. Okay. Correct. So most of the people, some are fresh, some are having 2 or 3 year gap, and they are writing mains. Okay. So for those who are fresh, they are एकदम fresh. Okay. So for them, all four subjects are very much good. Okay. People those are having 2 to 3 year gap now, it's difficult for them little bit, Correct. not so but little bit. So my suggestion is just overlook the syllabus and try to just read all the subject syllabus wise. ओके Mhm. बिकॉज सिलेबस अगर हम चार देखने जाएंगे तो एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए कम से चाहिए कम. चाहिए. ठीक हम्म. है. रही बात इंजीनियरिंग की जो हमने कवर किया, इंजीनियरिंग में मैक्सिमम न्यूमेरिकल आएंगे. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ का डिज़ाइनिंग आएगा, जैसे पाश्चराइजर का है या होमोजेनाइजर का डिज़ाइनिंग है, या उसका थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है. तो जो बेसिक चीज़ें हैं सबके लिए सेम है, भला ही वो डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट है या फूड टेक्नोलॉजिस्ट है. बेसिक प्रोसेस एंड बेसिक इंस्ट्रूमेंट बोथ आर सेम फॉर बोथ द फील्ड. ओके. पाश्चराइजर दोनों के लिए सेम है, होमोजेनाइजर दोनों के लिए सेम है, इवापोरेटर दोनों के लिए सेम है, स्प्रे ड्रायर दोनों के लिए सेम है. द ओनली डिफरेंस इज कि हम स्प्रे ड्रायर में मिल्क को स्प्रे ड्राई कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल के कंपोनेंट को स्प्रे ड्राई कर रहे हैं. ठीक है. तो ओनली डिफरेंस, टोटल प्रोसेस इज सेम, ओनली डिफरेंस इज टेम्परेचर. राइट. तो सेम इज विद इवन पाश्चराइजेशन. अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में भी होंगे, इंडस्ट्री में किताबी नॉलेज से थोड़ा ज़्यादा सीसीपीएम ज़्यादा मेंटेन करते हैं. जैसे हमारा Correct. अगर किताब में अगर पाश्चराइजेशन टेम्परेचर 71.5 दिया हुआ है एस टी के लिए, Yes, yes. तो वो इंडस्ट्री में हम 75 ± 2 के रेंज में रखते हैं. ठीक है. Correct. तो हमको इंडस्ट्री का नॉलेज इधर पेपर में नहीं लिखना है. ठीक है. ठीक है. जो किताब में दिया है वही तो देखना है, दिया है क्योंकि जो वही. इन्वेस्टिगेटर होगा वो वही किताब वाला ही देखेगा. ठीक है. तो एक Correct. ध्यान में रखना है कि हाँ, और दूसरी बात रही कि देखिए, आपको अभी 15 दिन में जैसे आपको बेसिक के ऊपर ही फोकस करना है, और बहुत से लोगों का जो फूड से निकले भी है, अब बहुत से लोगों का बेसिक ठीक ही है. ठीक है. आपको अगर कोई हर्डल टेक्नोलॉजी अगर पूछ रहा है तो आपको एटलीस्ट उसमें हर्डल पता होनी चाहिए कि उसमें हर्डल क्या क्या है. शुगर है, Okay. सॉल्ट है, ऑयल है, एसिडिटी है. तो ये सबका क्या क्या फंक्शन है तो सबको ऑलमोस्ट पता होगा, एसिडिटी क्या करता है, शुगर क्या करता है, ऑयल क्या करता है. ठीक है. तो ये जो बेसिक है आपको, तो वो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा. तो एटलीस्ट आप उसके बारे में अगर पढ़े भी नहीं होंगे तो आपको एटलीस्ट दो दो लाइन हर किसी के बारे में लिखना आना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट वो है, Correct. क्योंकि Correct. 15 दिन में आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक के ऊपर ही फोकस करना है, सिलेबस देखना है, बेसिक के ऊपर फोकस करना है. ठीक है. आपका Correct. आपका अगर बेसिक क्लियर है तब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे. आपको फार्मूला याद है, फार्मूला से आपको अगर आंसर कैसे निकालना वो पता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे. और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव है जो हमने बीटेक हाँ. में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते थे ना, वही पिछले वाले क्वेश्चंस में आए हैं इस बार. सर वो जो जितने भी जिन मैंने देखा, जैसे वाइटामिन वाला हो गया या वेट बल्ब टेम्परेचर वाला हो गया, मास एनर्जी हाँ. बैलेंस वाला, ये हम लोग बीटेक में ही पढ़ते हैं. और किसी ने भी गलती से भी गेट की थोड़ी बहुत सिलेबस देखी होगी और पढ़ाई करी होगी ना, तो ऑलमोस्ट इट बिकम्स मोर इजियर अगर कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे. दूसरा ये है कि सर जैसे मान लो टाइम भी कम है, लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया, ठीक है. अब उस दिन दो पेपर है. वन पेपर इज ऑफ दिस हाँ. सेक्शन पार्ट ए वाला, और पार्ट बी इज दैट आर डिस्क्रिप्टिव. उसको कैसे लेना चाहिए? जैसे पार्ट ए इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पार्ट बी इज, ठीक है. और पार्ट आपके वन पास दो में ऑब्जेक्टिव है ना. ऑब्जेक्टिव है, और उसका सिलेबस भी पूरा डिफरेंट है जो प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट था. तो वैसा ही हम्म. सिमिलर काइंड ऑफ सिलेबस है, 5 सेक्शन, उसमें 20-20 मार्क्स के, ठीक है. तो हाउ शुड उसमें आईपीआर भी पीपल, है. करेक्ट, तो हाउ शुड पीपल टेक केयर ऑफ दैट? जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है और जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो उनके लिए तो और आसानी है उसके लिए.
ठीक है। ठीक सिलेबस है। देखिए, आईपीआर का आपको ऐड हुआ है, ठीक है। अगर अब अभी किसी ने पेटेंट एजेंट का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, तो वो उसमें क्या था, वो ऑनलाइन, वो ऑनलाइन ही, हाँ वो ये है, पेटेंट एजेंट का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही हुआ था। शायद आपको उसके पेपर जो है करेक्ट करेक्ट। आईपीआर के साइट पे मिल जाएंगे। पिछले 1-2 साल के पेपर देख लीजिए, ठीक है। डिजाइन के। हाँ, पेटेंट एजेंट के, ओके। पेटेंट एजेंट का जस्ट अभी 7 दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है, 7 तारीख को। तो उसका अपलोड हुआ होगा साइट पे पेपर। और पिछले 2-3 साल के पेपर आप देख लीजिए। और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर है, पेपर 2 मत देखिए आप, पेपर 1 देखिए। उसमें से सारी चीज़ें, क्योंकि पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। तो आप क्या है कि 15-20 नंबर के लिए ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करिए उसमें। अगर ओके। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, वो सेक्शनल नहीं कट है। ऑफ नहीं, हाँ ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम फोकस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कम्प्लीटली लॉ बेस्ड पेपर है। ये इज़ ऑल अबाउट रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ पेटेंट एक्ट, ओके। तो आप उसमें अगर पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उधर चीज़ें लग समझ जाएगा। में नहीं आएगी, ठीक है, और टाइम लग जाएगा, क्योंकि लॉ के टर्म क्या होता है कि बहुत वेगली फ्रेम रहते हैं वो, ठीक है। तो उसके इंटरप्रिटेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एक ही वर्ड के। करेक्ट। तो वो अगर हम समझ नहीं जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा, ठीक है। अगर सेक्शनल कट ऑफ होता तो फिर थोड़ा बहुत टाइम उसमें देना पड़ता। अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो अल्टीमेटली आवर एम इज़ वी हैव टू गेट इनटू द मेंस, कि मेंस को हमको थोड़ा क्लियर करना है और इंटरव्यू तक जाना है। तो हमारा तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, 4 सेक्शन, 100 नंबर का क्वेश्चन है ना वो, तो 5 सेक्शंस हाँ है, 20 20। 5 सेक्शन 20 20 20 20 के हैं। 20-20 के, ठीक है। तो 80 नंबर तो फिर भी आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए है, ठीक है। वो 20 अगर हम छोड़ भी दें तो 80 नंबर, 80 क्वेश्चन तो आपके पास अटेम्प्ट करने के लिए है। तो उससे ऑलवेज बेटर कि वो जो 80 क्वेश्चन जो है वो अभी जो आपने प्रीलिम्स दिया है इसका, उसी से रिगार्डिंग है। बचा बस ओनली 20 नंबर का प्रॉब्लम जो आईपीआर का है। तो आईपीआर में जैसे बेसिक सी चीज़ें हैं कि पेटेंट कितने साल के लिए होता है, और टेरिटोरियल राइट है या नहीं है, जो हमने प्रीलिम्स के सिलेबस में कवर किया है, वो वाला पार्ट आपके जो नोट्स थे उसमें कवर्ड है ऑलरेडी, ठीक है। तो करेक्ट वो जो बेसिक बेसिक वहाँ से देख लीजिए, अगर वहाँ से आपका 3-4 क्वेश्चन भी बन गया तो वो वेल एंड गुड है। करेक्ट करेक्ट। एक चीज मुझे लगता है कि याद रखनी पड़ेगी, और ये हर एग्जाम में फॉलो होता है, कि जितने भी बाकी लोग भी वो भी सेम सेम ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो कंपटीशन तो सबके साथ एक ही होगा। जिसने बहुत पहले तैयारी करी होगी उसके लिए थोड़ा बेहतर होगा, जिसने थोड़ा लेट करी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट ठीक है। कंपटीशन तो सबके, पेपर तो सिमिलर ही होगा सबके लिए, तो आपको उतनी प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं अ, है। डोंट हैव टू ये वरी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, किसी भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो होता है हमारा, कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कैसी है, ठीक है। दिस इज सो ऑल्सो मेन करेक्ट। क्योंकि जैसे अभी एक तो विंटर का टाइम है, तो मुंबई के लोगों के लिए थोड़ा आसानी होगा वहाँ पे, क्योंकि विंटर तो होता नहीं है, ठीक है। बट जो करेक्ट लोग नॉर्थ इंडिया बेस्ड है, ठीक है, तो उनको हालत पूछ लीजिएगा विंटर में लिखने का क्या हालत होता है, ठीक है। तो मेरा एक ही सजेशन है, जितना भी हो सके, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत सारे अटेम्प्ट करने हैं और टाइम आपके पास कम रहेगा, क्योंकि एग्जाम में कितना भी टाइम मिले, काम टाइम कम ही मिलता है हमको। तो जितना भी हो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है डेली। तो एक कवर तो कम से कम निकालना पड़ेगा आपको राइटिंग करने के लिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट बोलेंगे कि मैं पढ़ लेता हूँ, एग्जाम में जाऊँगा, वहाँ पे मैं देख देख लूँगा लूंगा। कि मैनेज होगा क्या नहीं होगा मेरे से। बाद में 1 घंटे के बाद हाथ थक जाएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बन जाएगा, भूल जाएंगे आप। तो ये बात है। राइटिंग प्रैक्टिस 15 दिन है, आपका राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करिए। और डेली कम से कम जो भी पढ़ते हैं उसको 1 आवर तो भी उसमें इन्वेस्ट करिए, कि आप राइटिंग करिए लिखने में। उससे, लिखने करेक्ट में। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन भी बेटर हो जाएगा और आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और जहाँ तक करेक्ट मुझे पता है, करेक्ट। जितने लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है सबका ऑलमोस्ट बेसिक तो ठीक ठाक ही होगा। थोड़ा सा बस आपको, जो जिन लोगों का गैप है उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा तो बेसिक अपना क्लियर करने के करेक्ट लिए, ठीक है। अब 15 दिन में तो बेसिक के अलावा और कुछ आप कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी वो तो चीज़ है, बहुत बट अच्छी चीज है, अब बट बेटर है कि बेसिक पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा आपको सारे अटैम्प क्वेश्चन अटैम्प हो जाएंगे। ये मेरा व्यू है। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, बट मैं यही सजेस्ट कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट। सो अभी चलते हैं
डायरेक्टली जो ऑडियंस है उनसे उनका कोई क्वेश्चन हाँ है. क्वेश्चन. So guys, if you have any questions directly, any confusion, please put up your hands in MS team and ask your questions. So Yogesh Patil. Hi Yogesh, please tell me. सर 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है 2020 के 2 पार्ट्स है. हाँ हाँ. तो हाउ मच मतलब कितने वर्ड्स मुझे लिखने पड़ेंगे वहाँ? देखिए, वही मैं पहले बोला आपको एकदम स्टार्टिंग में कि देखिए, अगर आपका क्वेश्चन का डिमांड ही अगर 200 वर्ड का है, राइट, समझ रहे हैं आप? अगर आपका क्वेश्चन का डिमांड ही अगर 200 वर्ड का है तो उसमें 400 वर्ड लिख के क्या हो जाएगा? ओके. समझे? Correct. देखिए, आपको कभी कभी कन्फ्यूजन ये होगा, क्योंकि जो मेरे साथ भी हुआ था कि 12 नंबर के क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा लिखना पड़ा था एज कम्पेयर टू 14 नंबर के क्वेश्चन से. यस सर. हाँ, तो अगर आपका क्वेश्चन का डिमांड अगर मान के चलिए कि 12 नंबर पे अगर 2 पार्ट है, ए एंड बी, दोनों का वेटेज 6-6 नंबर का है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, राइट? तो दोनों को अटेम्प्ट करने में आपको अमाउंट भी वर्ड भी ज़्यादा लगेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो अगर आपका 200 नंबर जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है? उसका डिमांड ही अगर 200 वर्ड का है, वो 200 नंबर से ज़्यादा माँग ही नहीं रहे आपसे, आपका 200 वर्ड में आंसर ही फिनिश हो गया, तो आप उसमें एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे? यस Correct. सर. Correct. Correct. सर सेकंड क्वेश्चन ये था. हाँ. सर लास्ट 2015 में 5 फ्लोचार्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मतलब जैम प्रोसेसिंग, वाइन प्रोसेसिंग. हाँ, हाँ, हाँ. तो मुझे फ्लोचार्ट के साथ उनका प्रोसेसिंग भी लिखना होगा नीचे, क्या फ्लोचार्ट में ही पूरा एक्सप्लेन स्ट्रक्चर करना होगा? नहीं, 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 ये गलती मत करिएगा। देखिए, फ्लोर चार्ट क्या होता है ना, बस एक आसानी होती है कि हम ये प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं, राइट? तो आप एक पहले तो फ्लो चार्ट बनाइए साइड में, या तो पहले फ्लो चार्ट से स्टार्ट करिए। तो अगर स्टार्टिंग अगर फ्लो चार्ट से करेंगे आप, तो एटलीस्ट जो जो पेपर चेक करने वाले हैं, उनको तो एटलीस्ट होगा कि चलो लड़के को प्रोसेस पता है, तो नीचे तो ठीक ही लिखा होगा, राइट? जैसे आप फ्लो यस. चार्ट में अगर वहाँ पे हम लिखते हैं कि पाश्चराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल पाश्चराइजेशन लिखते हैं, वहीं पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे 71 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकंड, ठीक है? तो अल्टीमेटली जब आप राइटअप करेंगे उसमें तो लिखेंगे ही वो, ठीक है? तो एटलीस्ट जो इन्वेस्टिगेटर है उसको पता चल जाएगा एटलीस्ट कि इसको पाश्चराइजेशन का स्टेप्स पता है, ठीक है? यस सर. यस सर. हाँ. हाँ, तो फ्लो चार्ट आपको अलग से बनाना है और राइटअप आपको अलग से लिखना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पूरा हौश-पौश हो जाएगा, ठीक है? और वो समझने वालों को भी, वो जो इन्वेस्टिगेटर उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो पेपर आप आपका राइटिंग जितना सिंपल एंड स्वीट हो उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है? Correct. और जैसे हम यूपीएससी में क्या करते हैं कि वर्ड के बीच में गैप थोड़ा सा मेंटेन करते हैं कि थोड़ा सा ठीक अच्छा दिखे, ठीक है? तो वो, और अगर आपकी इसमें अगर रूल्ड अगर आंसर सीट है तो वेल एंड गुड, अगर टोटल वाइट पेपर है, ठीक है? तो वो थोड़ा सा आपका राइटिंग का वो भी एक प्रैक्टिस का बहुत एडवांटेज होता है कि आपका लाइन बाय लाइन आएगा, एक के नीचे एक। अगर वो अगर देखेंगे जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना आपका पेपर अच्छा दिखने में लगेगा ना लोगों को, अगले वाले को, तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इससे। Correct. ये Very correct. कोई भी एग्जाम में होता है, जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जो आपका रिटन एग्जाम होता है, उसमें मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि आपकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी मैटर करती ही है, ठीक है? और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है क्वेश्चन आंसर शीट में, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरी एक और सजेशन है सर. हाँ प्लीज टेल मी कि जैसे क्या होता है कि जब हम कभी प्रेशर में होते हैं तो हमारा पेपर जो हम पढ़ रहे होते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे कि अभी 12th फेल वाली मूवी जो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, उसमें वो है कि टूरिज्म इन इंडिया लिखना था और टेररिज्म इन इंडिया लिख देता है, ठीक है? हाँ और ये गलती मुझे लगता है जितने भी बच्चे भी बहुत से 2-3 सालों से तो मैं इसमें हूँ ही, तो बच्चे चाहे गेट का एग्जाम में चाहे सीएफटीआरआई को हो, तो लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और है, ठीक है? और वो प्रेशर की वजह से होता है. तो मुझे लगता है कि सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए किसी भी पेपर में, बहुत अच्छे से पेपर अगला 5 मिनट जैसे स्टार्ट हो अच्छे से पढ़ो, थोड़ा शांत होके, टेक ब्रीथ एंड टेक मेक प्रैक्टिस योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली. लेट्स से अगर 2 से 5 है तो 2 से 5 में एटलीस्ट बैठो, आप पढ़ाई करो, लिखो, लिखने की प्रैक्टिस करो, सो दैट योर माइंड इज हैबिचुअल ऑफ दैट ड्यूरेशन. एंड आल्सो एवरी इन अ गुड एग्जामिनेशन दे यूज्ड टू गिव कि यूपीएससी में क्या होता है, they'll be giving within 300 words, within 400 words, they'll mention in bracket. So please go through that and try keeping. And also you have to understand one thing very beginning in the paper,
कि एक लाइन में आप एवरेज वर्ड्स गिन लो कि यार कितने वर्ड्स मेरे एक लाइन में हो रहे हैं। लेट्स से 8 और 10 वर्ड्स यू आर राइटिंग इन दैट, so you have to write 20 lines for 200 words or 30 lines for 300 words. So you can't waste your time in counting the words. You have to make it average कि 210 लिख दिया, 195 लिख दिया. It should be same, and no invigilator also is going to check that कि no, this guy has exactly written 200 words. So just maintain that कि now you are writing 10 or 10 15 words, so particularly how many words on average, how many lines you have to write. So please, see this. Now we'll take another question from another person. VK, please VK tell. सर हाँ अभी ये जो पेटेंट का एग्जाम हुआ था तो हाँ मेरा शायद नोट्स बन गए हैं, लेकिन अगर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस के साथ अगले 10 दिन में मैंने 1 पेजेस में टॉपिक कन्वर्ट कर लिया, मेरा राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो ये अप्रोच सही रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो बोला कि आपको जितना भी हो, आपका डेली का एक एक पेज भी आप लिख लिए ना, बस आपका होना चाहिए कि राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, पढ़ाई भी करनी है हमको तो 10 दिन कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, 11वें दिन ऑटोमेटिक किताब हाथ में आ जाएगा। And also we are also doing one thing. We are giving 5 papers, basically 5 mock papers. Today we'll be releasing that all the 5 mock papers today evening, so people can practice with that every second day or within 5 days. We'll be also uploading the answers, tentative answers basically, and you can match with that, and you can also put it some. So we'll be giving sample answers, and you can match with that, and it will help you in practice. So within 2 days, every 2 days you can take one paper and you can practice, and within that period of time, so 2 to 5, the timing is just 2 to 5 between, you can practice, and you can next day you can analyze that. So I guess that may help, of course. So I guess with this we'll bind up, since there's no question and almost we have covered. Also we'll try to make one session before examination, or will you can put up your questions to our email ID innovation@division4.com. We'll also provide in the this video will upload, and also you can message us on for any type of question. If you have any confusion, you want to get clarification on anything, 7510545525. So you can get all this information also on AgriVision Sorry website. Okay. So with this, would like to thank Amol sir. Lot of thanks. Basically, have made time and this early morning, of course. And thank you everyone for joining us.